جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت نہانے سے انسان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارا کھلا دیا کرو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں کے اندر چربی پگھلنے لگے گی۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھو تو جان لو کہ جلدی خوشخبری ملنے والی ہے۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کچی لسی یعنی کہ کچھ دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پی لینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ جمعہ شریف والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جمعہ شریف والے دن ناخن لازمی کاٹا کریں۔ گائے کا دودھ پیو، جوانی لوٹ آئے گی۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ کی بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اچھی اور بہترین صحت عطا کرے۔ موٹی عورتیں یہ چیزیں کھائے دبلی ہو جائے گی: اجوائن، خشک میوہ اور لیمو۔ رات کو آسمان کی جانب روزانہ دیکھنے سے آپ کا دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گرم پانی سے نہا لیا کریں، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ایک چائے اور دوسرا لسی اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت جب اپنی جیب میں الائچی رکھ لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ جس گھر میں رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنے گھر میں بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے آپ کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ شہد میں نمک ملا کر چاٹ لینے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس چاٹو، طاقت بڑھے گی۔ دہی اور کھجور ایک ساتھ کھا لینے سے آپ کی چھاتی صاف ہو جاتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سو جاؤ، برکت ہوگی۔ اگر لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ روزانہ 2 پالک کے پتے چبا لینے سے منہ پر جریاں نہیں آتی۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ سر پر زیتون لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نہار نیم کے پتوں کو دیکھو، آپ کی نظر ٹھیک ہوگی۔ پیشاب رک رک کر آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو جان لو کہ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے۔ میتھی کی روٹی دہی کے ساتھ کھا لینے سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لینے سے انسان کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گوبھی کا چھلکا کھا لیا کریں، اس سے آپ کا چہرہ تازہ اور خوشباش ہو جائے گا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبح کو 1 روٹی کھا لینے سے انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ روزانہ صبح کو نیم گرم پانی پی لینے سے پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی اور پیٹ صاف رہتا ہے۔ دوپہر کو روزانہ گاجر کھانے سے بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ روزانہ چنے کی دال میں لیمو نچوڑ کر کھا لیا کریں، 7 دن میں چربی پگھل جائے گی۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم کرنا ہے تو ہونٹوں پر گلاب کا عرق لگاؤ۔ سوتے وقت
पखाना सख्त आने लगे तो थोड़ा सा आड़ू खाने से कबल खा लिया करें, पखाना खुलकर आएगा। आटे को गूंथते वक्त अदरक का पानी मिलाओ, रोटियां नरम बनेंगी। हामला औरतें काफ़ी से दूर रहा करें, इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। रोजाना प्याज खाओ, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो रोजाना सुबह उठते ही परिंदों को ताज़ा पानी डाला करो। काली मिर्चें चबाने से आपके पट्टों में दर्द का मसला खत्म हो जाता है। खवातीन जवान और खूबसूरत रहना चाहती हैं तो वो सुबह के वक्त नहार मुंह दूध में सेब डालकर खा लिया करें। कड़वे बादाम खाने से आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। लीमू का अरक हस्बे ज़रूरत, कलवंजी 50 ग्राम। किसी शीशे की प्याली में कलवंजी रखकर इतना अरक डालें कि कलवंजी अरक में डूब जाए, फिर इसको ढाँप दें। जब कलवंजी खुश्क हो जाए तो इसको पाउडर की शक्ल में सफूफ बनाकर नीले रंग की बोतल में महफूज कर लें। रोजाना रात को सोते वक्त खा लिया करें। साथ साथ पेट कम करने की वर्जिश भी करें। मेथी और चिकनी चीज़ों से परहेज करें। देखिएगा हफ्ते में आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा। हाथ जल जाए तो नमक और शहद का लेप कर लें। कच्चे तेल खाने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। कंघी के और नींबू का पानी लगाकर फेर लें, बाल खूबसूरत हो जाएंगे। जिन औरतों पर मोटापा आ जाए वो नहार मुंह कलवंजी खा लें, दुबली पतली और खूबसूरत हो जाएंगी। खाने से कबल एक बड़ी इलायची खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। शाम के वक्त गोश्त मत खाओ, आप कैंसर जैसी बीमारी से बचे रहोगे। एलोवेरा काट कर कच्ची खा लेने से कई साल तक आपका मैदा खराब नहीं होता। हमल ना ठहरता हो तो नहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजश खत्म हो जाती है और हमल भी ठहर जाता है। पेट की गैस दूर करने के लिए सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जिंदगी चाहते हो तो जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाओ। हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करो। चाय के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि आप जहर खा लें। चाय से पहले पानी पियो, जिंदगी बढ़ जाएगी। शाम को ऑयली चीज़ें खाने वाला बंदा बहुत जल्द बीमार हो जाता है। जिस घर में सफ़ेदे का पौधा लगा हो वहाँ पर जुकाम की बीमारी नहीं आती। गन्ने का रस पिया करें। हमल के दौरान गर्म चीज़ों से परहेज करें, इससे बच्चा कमज़ोर होने का खदशा है। 3 सांसों के अंदर पानी बैठकर पीने से आपकी मर्दाना ताकत बढ़ती है। अगर आपको लेटे हुए भी चक्कर आ रहे हैं तो अपना एक पाँव ठंडी ज़मीन पर लाजमी रख दें। अगर आपको लेटे हुए चक्कर आते हैं तो अपने पाँव को ठंडी ज़मीन पर रखें। नमकीन खाना ज़्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकने रखने से पथरी होने लगती है। काला पैखाना आए तो जानलेवा बीमारी लग सकती है। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा हमेशा जवान रहता है। अगर मुंह में छाले पड़ने लगें तो फटे हुए दूध से कुली करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फौरन असर करती है। बदहजमी से बचना चाहते हैं तो हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। समुद्री नमक खा लेने से आपका वज़न कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल कम कर दें, आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। वरना रोज़ाना नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। कच्चे फल मत खाओ, ज़हनी कमज़ोरी हो जाएगी। प्याज सूंघने से दिल की बीमारी ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना 1 मरतबा सूरतुल मुदस्सर की तिलावत किया करें, आपका हाफजा मजबूत रहेगा। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे के कील मुहासे और स्याहियाँ ख़त्म हो जाती हैं। औरत निस्वाई हुस्न में इजाफा करने के लिए अखरोट का इस्तेमाल करें और भिंडी की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार लाजमी खाएं। मसूड़ों का दर्द है तो उबले हुए अंडे की जर्दी को मसूड़ों पर लगाएं, मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। कोई पौधा मुरझाने लगे तो फौरन दही की लस्सी इसकी जड़ों में डाल दिया करें। आलू शाम को मत खाएं, आपको बवासीर हो सकती है। जब भी दूध को उबालें इसमें इलायची शामिल कर लें, दूध खराब नहीं होगा।
खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बनाई की कमजोरी को दूर करती है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करने से आपके पट्टे मजबूत रहते हैं। अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म का दर्द जैसा भी हो, हवा हो, इसमें आराम आ जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज करो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ताज़ा आबो हवा के लिए ज़रूर खोलें। अपने घर में सूरत रहमान की रिकॉर्डिंग रोज़ाना ज़रूर चलाया करें। आपको बजाते खुद अपने और अपने घर में बेहतरी महसूस होगी। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो, दिल की घबराहट फौरन दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लहसुन काट कर मसल दें, चेहरा साफ हो जाएगा। जिगर को खराब होने से हल्दी बचाती है। मसवाक करने से आपका मैदा भी ठीक रहता है। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस करोगे। हरी मिर्च ऐसी चीज़ है जिसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपके जोड़ मजबूत हो जाते हैं और पट्ठों में ताकत आती है। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो हर खाने के बाद अच्छी तरह करूली करें। बवासीर के मरीजों के लिए लोखाट का फल किसी नेमत से कम नहीं। चावलों के ऊपर पानी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करें, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। नहार में उबला हुआ आलू खाने से बदन के अंदर चुस्ती आने लगती है। नारियल को दूध में शामिल करके खा लेने से मिर्गी की बीमारी नहीं होगी। सोने से कबल आलू बुखारा खा लेने से बेचैनी करीब नहीं आती। जल्दी नींद लानी है तो सोने से कबल सब्जी अंगूर खा लिया करें, सुकून की नींद आएगी। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी। केले के छिलकों को दांतों पर रगड़ने से दांत मोती जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। लीची गर्मियों का नायाब तोहफा है जो कुछ ही अरसे के लिए आता है। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। लीची प्याज को बचाती है। जिगर के मरीजों के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। प्याज सफ़ेद बालों के लिए नहायत मुफीद चीज़ है। प्याज का पेस्ट सर पर लगाएं, कुछ देर के बाद अच्छे शैम्पू से बालों को धो लें। चंद दिन इस तरह करने से बाल काले घने हो जाएंगे। फालसा खाकर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लीजिए, दांत की मैल साफ हो जाएगी। सब्ज रंग की चीज़ों को रोज़ाना सुबह गौर से देखें, आपकी कमज़ोर नज़र तेज़ हो जाएगी। पका हुआ आम खाओ, आपका रंग निखर जाएगा। चाय पीने के बाद बची हुई पत्ती को ज़ाया ना करें, बल्कि इसको घर के कोने में रख दें। इससे मच्छर और मक्खियाँ नहीं आएंगे। बदहज़मी से बचना है तो खाना आहिस्ता आहिस्ता खाओ। नहाने से कबल एक केला खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। बालों में नहार मुँह कंघी करने से सर में खून की रवानगी बेहतर होती है। जो लोग कंघी बहुत कम करते हैं उन लोगों के बाल जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी चर्बी को पिघलाता है और चेहरे के कील मुहासों को ख़त्म करता है। अगर रिस्क में रुकावट आने लगे तो घर में एक बकरी ले आओ, रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। कच्चे नारियल का रस दिमाग की कमज़ोरी के लिए मुफीद और चेहरे का रंग निखारता है। रात की बची हुई रोटी के इस्तेमाल से बदन पर बुढ़ापा नहीं आता और ताकत भर आती है। मछली को भून कर खा लेने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। दूध में तुख मलंगा डालकर पी लिया करें, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अंगूर खाओ, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। रात को अनार खाने से दिमाग को बेतहाशा ताकत मिलती है। किसी जगह पर सूजन आ जाए, उस जगह पर पान के पत्ते रगड़ो, सूजन खत्म हो जाएगी। सफ़ेद रंग का कपड़ा सर पर रख लेने से आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होती। दोपहर के वक्त सो जाएं, यादाश्त अच्छी हो जाएगी। दूध में कच्चा केला शामिल करके खाने से जिस्म में कमज़ोरी नहीं आती। मुल्तानी मिट्टी घर में रखो, मकड़ी जाला नहीं बनाएगी। चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आएँ तो कच्चा दूध लगाओ, दाने निकलना बंद हो जाएंगे। ज़्यादा नमक बदन पर एलर्जी आता है। हाथ पाँव का रंग काला हो तो ऊँटनी का दूध लगाओ, सफ़ेद हो जाएगा। चेहरे की रंगत पीली पड़ जाने की वजह से जिगर की कोई बीमारी हो सकती है।
मुंह पर चने की दाल पीस कर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं आएंगे। चेहरे पर दाने नहीं आएंगे। अगर चाहते हैं कि सारी जिंदगी पेट की गैस का कब्ज का मसला ना हो तो चंद काम कर लो। खाने में अदरक और काली मिर्च रोजाना इस्तेमाल करें। खाने को हमेशा चबा चबा कर खाएं। नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल मिलाकर पी लें। खाने से पहले पानी पियो, खाने के 2 घंटे बाद पानी फिर पियो। नहार मुंह चेहरे को धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल कर लेने से चेहरे की जिल्द नरम, मुलायम और ताज़ा रहती है। मैदे की तजाबियत को दूर भगाने के लिए अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करो। मैदे का दर्द हो तो टिंडे का सालन खा लेने से दर्द ठीक हो जाता है। खड़े होकर पेशाब मत किया करो, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। सोने से कबल फालसा लाजमी पिएं। शिमला मिर्च खाओ, बंद कान खुल जाएंगे। तेज़ गर्म खाना मत खाओ, दिल की बीमारी होगी। गर्दन की तेल से मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाली औरतों को बाजपन की बीमारी लग सकती है। अगर पेट का दर्द हो तो जीरे को पीसकर शहद के साथ चाटें, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आड़ू खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। औलाद नरीना और बेटे की नियत करके सारा दिन सूरतुल कुरैश बवज़ू होकर पढ़ें, इंशाअल्लाह औलाद नरीना पैदा होगी। खाने के बाद हरगज़ ये काम मत करें कि चाय और काफ़ी शदीद नुकसानदेह है। खाने के फौरी बाद फल इस्तेमाल ना करें। खाने के बाद पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। खाने के फ़ौरन बाद नहाना भी नहीं चाहिए। रात के खाने के बाद फ़ौरन बाद सोना मोटापे के साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। खुशक खांसी की तकलीफ़ में खजूर और केले को मक्खन में मिलाकर खाना नहायत फ़ायदेमंद है। जो लोग कम उम्री और जवानी में बाकायदगी से दूध पीते हैं उनको बड़ी उम्र में जाकर जोड़ों और हड्डियों का दर्द नहीं होता और उन पर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। ज़्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है। अगर रोज़ाना कुछ लोग लौंग खा लिया करें तो चंद दिन में उनके वज़न कम हो जाएगा। बगलों में दाने निकलने लगे तो मैदे की गर्मी की निशानी है। खीरा ज़्यादा खाने वाले इंसान को सांस की बीमारी नहीं आती।